آج دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان صرف ایک ہی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ہستی ہے امام مہدی علیہ السلام۔ وہ آئیں گے اور بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک ہی پرچم تلے جمع کریں گے، اور پھر ہوگی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے؟ وہ کیسے پوری دنیا پر اللہ کی حکومت قائم کریں گے؟ اور کیا واقعی دنیا کے آخری دن قریب آ رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ دنیا کے آخری دن قریب آ رہے ہیں۔ زمین پر ظلم کا سایہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ انصاف کی آواز کہیں کھو سی گئی ہے۔ لوگ اپنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ دل ٹوٹ رہے ہیں، امیدیں مرجھا رہی ہیں، اور مسلمان اپنے ایمان کے امتحان میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر طرف افراتفری، جنگ کا شور اور بے چینی کا عالم ہے۔ زمین کانپ رہی ہے، آسمان نشانیاں دکھا رہا ہے، اور انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اس دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تب اللہ کا خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے۔ وہ ہستی جس کا نام محمد ہوگا اور جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، بالکل ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ وہ پوری دنیا پر اللہ کی حکومت قائم کریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی۔ وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑیں گے اور باطل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی باقی بچا ہو تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظہور کرے۔ یہ شخص مہدی ہوگا، جس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ وہ اللہ کے سیدھے راستے پر چلے گا اور پوری امت کو اسی راستے پر لے کر جائے گا۔ صحیح ابو داؤد میں روایت ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ علیہ السلام ہمارے نبی کی بیٹی کی نسل میں سے ہوں گے۔ ان کا نسب حضرت حسن اور حضرت حسین سے ملتا ہوگا۔ حدیث کے مطابق جب مہدی ظہور کریں گے تو دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی۔ لوگ اپنے دین کو بھول چکے ہوں گے اور کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے اور ظالموں کو کچل دیں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب زمین کانپ اٹھے گی اور لوگ شدید پریشان ہوں گے۔ دجلہ ندی یعنی دریائے فرات کا حصہ 2 حصوں میں ٹوٹ جائے گی اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ جب یہ سونا ظاہر ہوگا تو لوگ پاگلوں کی طرح اس کی طرف دوڑیں گے کہ اس سے ہم امیر ہو جائیں گے۔ لیکن حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اس سونے کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر وہاں 100 لوگ بھی ہوں گے تو 99 اسی سونے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اتنے گناہوں میں ڈوب جائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھول جائیں گے۔ کفر کے قانون کھلے عام نافذ ہو جائیں گے اور ہر طرف ناانصافی کا بول بالا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ وہ اپنی پہچان چھپانے کے لیے یا اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ سے بچنے کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف نکل جائیں گے۔ مکہ پہنچنے پر کچھ مخلص لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہی وہ مہدی ہیں جس کا ہمیں انتظار ہے، آئیے اور ہماری قیادت سنبھالیے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام اس وقت اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، یہاں تک کہ لوگ ان سے زبردستی بیعت کریں گے۔ وہ انہیں خانہ کعبہ میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی، حالانکہ وہ خود اس وقت اس کے خواہش مند نہیں ہوں گے۔ جب مکہ میں امام مہدی کی بیعت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی تو باطل قوتیں حرکت میں آ جائیں گی۔ شام کے علاقے سے ایک بہت بڑا اور طاقتور لشکر
उनका खात्मा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना होगा। ये लश्कर अभी मक्का और मदीना के दरमियान बैदा नामी मकाम पर पहुंचेगा तो अल्लाह का हुक्म आएगा, जमीन अचानक फट जाएगी और इस पूरे के पूरे लश्कर को अपने अंदर निगल लेगी। हदीस मुबारका के मुताबिक इस लश्कर में हजारों सिपाही होंगे, लेकिन सिवाय एक या दो अफराद के जो इस वाक़े की खबर देने के लिए बचेंगे, बाकी सब के सब जमीन में धंसा दिए जाएंगे। जब दुनिया के कोने कोने में ये खबर पहुंचेगी कि मक्का की तरफ आने वाला लश्कर गायब से तबाह हो गया है, तो जमीन लरज उठेगी। ये वो लम्हा होगा जब अब्दाल शाम और इराक के नेक लोग जौक दर जौक मक्का पहुंचेंगे और इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे। अब पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि हक का सूरज तुलू हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के हुलिये मुबारक की ऐसी निशानियां बयान फरमाई हैं कि हक परस्त उन्हें देखते ही पहचान लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेहदी मुझसे होगा, यानी उनकी जिस्मानी साख्त और कद्दो कामत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत रखती होगी। अहादीस की रोशनी में उनकी चंद नुमाया निशानियां ये हैं। उनकी पेशानी चौड़ी और चमकदार होगी, उनकी नाक लंबी और दरमियान से थोड़ी उभरी हुई यानी खूबसूरत होगी। उनका रंग अरबों जैसा, न ज्यादा गोरा न ज्यादा सांवला होगा। उनका चेहरा ऐसा होगा जैसे कोई चमकता हुआ सितारा हो। उनकी दाढ़ी मुबारक काली और घनी होगी। उनका कद्दो कामत दरमियाना होगा, न बहुत लंबे और न बहुत छोटे, लेकिन उनकी शख्सियत में ऐसा रोब जलाल होगा कि बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान उनके सामने कांप उठेंगे। हदीस के अल्फाज हैं कि इमाम महदी के दौर में ऐसे मोजज़ात रूनुमा होंगे जो अक्ल को दंग कर देंगे। जमीन अपने अंदर छुपे हुए सोने, चांदी और तमाम मादनियात के खजाने उगल देगी। लोग इतने अमीर हो जाएंगे कि सदका लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। आसमान से बारिशें इतनी कसरत और बरकत से होंगी कि जमीन का 1 इंच हिस्सा भी बंजर नहीं रहेगा। हर तरफ हरियाली और फल होंगे। उनका सबसे बड़ा मोजज़ा उनका इंसाफ होगा। वो जुल्म को ऐसे मिटा देंगे जैसे सूरज अंधेरे को मिटाता है। एक अकेली औरत सोना पहनकर मीलों का सफर करेगी और उसे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा। वो इस्लाम को उसकी असल और खूबसूरत शक्ल में नाफिज करेंगे। पूरी दुनिया पर अल्लाह का परचम लहराएगा और बातिल कुव्वतें मिट जाएंगी। जब जमीन अपनी बरकतें उगल रही होगी, जब हर तरफ खुशहाली और अमन का दौर दौरा होगा, ऐन उसी वक्त दुनिया के एक कोने से एक ऐसी खबर आना शुरू होगी जो इंसानियत को हिलाकर रख देगी। एक ऐसा शख्स सोशल मीडिया, खबरों और लोगों की ज़बानों पर वायरल होना शुरू हो जाएगा जो खुद को खुदा होने का दावा करेगा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दज्जाल होगा। वो आम इंसान नहीं होगा। उसके पास ऐसी जादुई ताकतें होंगी जो लोगों की अक्लें दंग कर देंगी। वो बंजर जमीन पर कदम रखेगा तो वहां हरियाली आ जाएगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होने लगेगी। लोग उसके इन करिश्मों को देखकर उसे सच समझने लगेंगे, लेकिन हकीकत में वो सरासर फरेब और धोखा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था कि दज्जाल की पहचान क्या होगी। वो एक आंख से काना होगा और उसकी दोनों आंखों के दरमियान अरबी में काफ फा रॉ यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो साफ तौर पर पढ़ लेगा। दज्जाल एक तूफान की तरह उठेगा। वो दुनिया के चप्पे चप्पे पर जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के, जहां फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। वो अपने जादू और फरेब से लोगों को गुमराह करता हुआ मुल्क शाम सीरिया तक पहुंच जाएगा। इमाम महदी अपने मुखलिस साथियों और लश्कर के साथ दमिश्क यानी डमस्कस में होंगे। दज्जाल का लश्कर इतना बड़ा और ताकतवर होगा कि वो मुसलमानों का मुहासरा कर लेगा। वो रात बड़ी कठिन होगी। मुसलमान भूखे प्यासे होंगे और बज़ाहिर बचने की कोई राह नजर नहीं आएगी। फिर जब फज्र का वक्त होगा और इमाम महदी नमाज की तैयारी कर रहे होंगे, तब आसमान से एक ऐसी रोशनी उतरेगी जो सबकी आंखें चौंधिया देगी। 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे
अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो दमिश्क की जामे मस्जिद के सफेद मीनार पर उतरेंगे। इमाम महदी उन्हें देखकर पीछे हटेंगे ताकि हजरत ईसा नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा फरमाएंगे, नहीं, नमाज आप ही पढ़ाएंगे। नमाज के बाद किले के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जैसे ही दज्जाल की नजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, वो ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। वो भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे लुद के मकाम पर जकड़ लेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में मौजूद मुकद्दस नेज़े से दज्जाल पर वार करेंगे और उसे वासिले जहन्नुम कर देंगे। दज्जाल के मरते ही उसका तमाम लश्कर तित्तर बित्तर हो जाएगा और रूए जमीन से फितने का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। हक की फतह होगी और पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराएगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 से 9 साल तक हुकूमत करेंगे। उनका ये दौर इंसानी तारीख का वो सुनहरा दौर होगा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जब उनका वक्त रुखसत करीब आएगा तो उनका विसाल हो जाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद उनका जनाजा पढ़ाएंगे, जो इस बात की दलील होगी कि अल्लाह के नजदीक उनका मकाम क्या था। इमाम महदी की पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं होगी, बल्कि उनका इंसाफ और अमल उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी। वो लोगों की मदद करने वाले, अल्लाह से डरने वाले और रातों को इबादत में रोने वाले होंगे। उनकी सिफात ऐसी होंगी कि हर मजलूम उनके पास पनाह पाएगा और हर जालिम उनके नाम से कांपेगा। इमाम महदी की मदद के लिए खुरासान के इलाके से एक ऐसी फौज उठेगी जो निहायत बहादुरी से लड़ेगी। ये वो लोग होंगे जो इस्लाम को फैलाने के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करेंगे। एक और बड़ी निशानी ये होगी कि इमाम महदी खाना काबा के नीचे छुपे हुए खजानों को निकालेंगे और उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम कर देंगे, यहाँ तक कि कोई लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। उन्हें सिर्फ वो लोग पहचान सकेंगे जो ईमान वाले होंगे, जो अपनी इबादत में मुहतात हैं और जो इमाम महदी की सिफात को पहले से जानते होंगे। वो लोग जो अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, वही उनकी फौज का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग सिर्फ इमाम महदी का इंतजार करते हैं, लेकिन दीन की खिदमत नहीं करते। याद रखिए, जब वो आएंगे तो वो आपको अपने फर्ज पर पाएंगे। एक ऐसा इंसान जो फर्ज नमाज तक नहीं पढ़ता और इमाम महदी के आने की दुआएं मांगता है, वो दरअसल अपने आप को धोखा दे रहा है। इमाम महदी के लिए सिर्फ इंतजार काफी नहीं, बल्कि दीन की जिद्दोजहद जरूरी है। उनका साथ वही दे सकेंगे जिनके किरदार मजबूत होंगे और जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरे होंगे। आज ही से अपनी इस्लाह करें, नमाज की पाबंदी करें और अपने आप को इस अजीम मारके के लिए तैयार करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने जमाने के फितनों से बचाए, हमें अपने दीन का सच्चा खादिम बनाए और जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो तो हमें उनके वफादार सिपाहियों में शामिल फरमाए। आमीन।